اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں پشاور کے اپنے تمام صحافی بھائیوں بہنوں کا کہ ہمارے مختصر سے نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ سب سے جو تشویشناک امر ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کی شناخت اسلام ہے، اس ملک کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں، قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا کبھی آئی ایم ایف کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی ایف اے ٹی ایف کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں زنا بالرضا کے لیے
راستے کھولے گئے اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے، تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ تو ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا، جیسے ہم مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے، اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کی اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ سو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے، میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تھا؟ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو پاکستان اور ہندوستان کی مابین کشیدگی اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے جس میں امریکہ نے مداخلت کی چیز فائر کے حوالے سے، اور آج پھر ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو ہم پینگیں بڑھا رہے ہیں پاکستان کی طرف امریکہ کے ساتھ، ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چین ہے، اور چین اور امریکہ کے باہمی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، ہمارے فائدے میں کیا ہے؟ دیکھیے، 9/11 کے بعد اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ہم ہی تھے، اور آپ کو ہماری وہ تقریریں یاد ہوں گی جب ہم عالمی تغیرات اور عالمی انقلابات کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو پکارا تھا کہ آنے والے وقت میں
हमारा किरदार क्या होगा। यकीनन दुनिया में जो 9/11 के बाद यकमहवरियत आई हुई थी, अब वो यकमहवरियत टूट चुकी है और एक नए सर्द जंग में हम दाखिल हो चुके हैं। 300 साल तक दुनिया की मईशत पर जहां यूरोप का कब्जा था और जिसने दुनिया में सरमायादारियत के गलबे को जन्म लिया था, आज वो दोबारा एक नई जंग में दाखिल हो गए हैं। चीन की क़यादत में एशिया एक नया इक़्तिसादी टाइगर बनने की तरफ जा रहा है और जमीयत उलमा की तजवीज़ यही है कि हम एक एशियाटिक फेडरेशन की तरफ जाएं, एशिया को मजबूत करें। इंडिया पाकिस्तान की कशमकश जहां तवक्को की जा रही थी कि रफ्ता रफ्ता हम अपने ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, मामलात को हम बाहमी मुफाहमत से हल कर रहे हैं और इन दो रियासतों के दरमियान तनाज़ात के पुरअमन हल के राहें तलाश कर रहे हैं, जिहारत के ख़िलाफ़ अपनी मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं, गुर्बत के ख़िलाफ़ अपनी मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक छोटे से वाक़े ने मूदी की हमाकतों के नतीजे में दोबारा एक जंग में उलझा दिया है। तो इस हवाले से भी हिंदुस्तान को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि एक हुक्मरान की हमाकतों की वजह से हमें मुश्किलात, जो ख़ित्ते की मुश्किलात हैं, उस पर इजाफे की तरफ जाने की बजाय हमें मुश्किलात को वापस अपने असली हालत में बहाल करने की तरफ इक़दामात करने होंगे। लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत की इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को इस महाज पर जो इज़्ज़त मिली है और हमारी दिफाई क़ुव्वतों ने जो इस वक्त कारनामे दिखाए हैं, हमें आज भी अपनी दिफाई क़ुव्वत पर एतमाद है कि वो वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए कोई दक़ीक़ा फ़रोगदाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसके इस्तेहकाम के लिए हमारी दिफाई क़ुव्वत काम आएगी। हम बहस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की नज़रियाती हैसियत के हवाले से, नज़रियाती हवाले से, हुक्मरानों के इक़दामात के हवाले से, और उस पर हमने बात करनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने ये जंग जीतती है। हुक्मरान जमात के हवाले से हुक्मरान जमात आपस में एक दूसरे की बात इस सूरत हाल। मौलाना साहब, इसके साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड ले लें। ये पीपल्स पार्टी भी सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है, तो अच्छा नहीं था कि पीडीएम के तजर्बे के बरकस अगर ये आपस में एक साथ अगर तहरीक को आगे ले जाया जाए, पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन जमात। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। तो बात बुनियादी ये है, और ये एहतजाज भी इनके सामने है जी कि किस किस्म का एहतजाज था। तो बहरहाल ये जंग हमने लड़नी है और आईन और कानून की रोशनी में लड़नी है। इस हवाले से जो भी सूरत हाल मंजर आम पर आई है, सूबे के असम्बली के अंदर से ये आवाज़ उठी है। ये नहीं कि किसी हिज़्ब इख्तलाफ की जमात ने इस हवाले से कोई बात की है, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ी सराहत व वजाहत के साथ, सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब ने बड़ी सराहत व वजाहत के साथ
इस सारी सूरत हाल का तफसील बयान किया है और 40 अरब के करप्शन से आगे वो कहते हैं कि इसकी तादाद वो 200 अरब से भी बढ़ सकती है। अब जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि अगर हम कहें कि इसकी तहकीक की जानी चाहिए तो उसूलन तो यही बनता है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, अदालती सतह पर इसकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तस्दीक इस तरह भी सामने आ रही है कि 20 अरब रुपए वो रिकवर भी कर लिए गए हैं। अगर 40 अरब में 20 सिर्फ कोहिस्तान के करप्शन में 20 अरब वापस भी करा दिए गए हैं तो ये सारी सूरत हाल इस बहुत बड़े स्कैंडल या इस बहुत बड़े करप्शन की तरफ उसकी तस्दीक के इशारे कर रहे हैं। लेकिन ताहम हम ये समझते हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक बात न रहे बल्कि बाकायदा अदालती सतह की तहकीकात होनी चाहिए उसकी, ताकि कौम के सामने सही सूरत हाल सामने आ सके। मौलाना साहब ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं जो काबुल में और पाकिस्तान में जो तैनाती का अमल हुआ है उसमें कैसे आप देखते हैं कि काबुल और पाकिस्तान के दरमियान जो फासले हैं वो कम हो गए। दूसरा ये कि जब भी हम देखते हैं कि आप मैदान में आते हैं तो DUI को टारगेट किया जाता है। हम देख रहे हैं कि पहले भी कुछ दिन पहले भी पेशावर में जो सुसाइड अटैक हुआ था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि वो आपके जलसे को टारगेट करने के लिए वो सुसाइड नंबर आया। तो कौन सी ताकतें हैं आपको टारगेट कर रही है? मेरे हम कोई नया सवाल करें, इसमें तो हम पुराने हो गए हैं। दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं। अफगानिस्तान वाली से सर कम उम्र शादी के मुताले की तहरीक आप शुरू कर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी फैसला दिया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कितना उम्र है फीमेल के लिए और मेल के लिए? इसके साथ मेल और फीमेल के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, बुलूगत है। बुलूगत तो वो बुलूगत 12 साल में आती है, 10 साल में आती है, 13 साल में आती है, 14 साल में आती है, 15 साल में आती है। और अगर कमसीने में उनके वालिदैन निकाह कर दें तो फिर उसको ख़ियार बुलूग हासिल है। बालिग होने के बाद उसको इख्तियार होगा कि वो उस निकाह को कबूल करता है या नहीं करता। ये काबुल और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तक काबुल अफ़गानिस्तान की बात है हज़रत, ये मसनूई किस्म की एक जैसे तंग नज़री के नतीजे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें दोनों तरफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है कि जहाँ ज़िम्मेदार रियासतों को बहुत बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है हम वो नहीं कर पा सके, जबकि इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें इसकी बुनियादें हमने रख दी थी और तमाम शोबों में बाहमी ताउन के रास्तों पे इत्तेफाक कर लिया था हमने। उसकी पैरवी क्यों नहीं की जा सकी और क्यों हमने उन कामयाबियों को कामयाब नताइज तक नहीं पहुंचाया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सवालात हैं। लेकिन अगर अब कुछ मामलात आगे बढ़े हैं, यानी अगर सीपैक को एक्सटेंड किया गया है अफ़गानिस्तान की तरफ, तो ये मज़ीद आगे वस्त एशिया तक भी जा सकेगा, इसको ईरान तक भी एक्सटेंड किया जा सकेगा और ख़ित्ते में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक एक दूसरे के साथ मफादात के एतबार से, इक़्तिसाद के एतबार से, अवाम के बाहमी फलाह बहबूद के एतबार से एक एंगेजमेंट हो जाएगी उनकी और एक दूसरे से वाबस्ता हो जाएंगे। और फिर अभी हम अपने जो सफारत खाने हैं उनको भी अब अपग्रेड कर रहे हैं, नाज़िमुल उमूर से आगे अब सफ़ीर के मनसब की तरफ उनको ले जा रहे हैं। उनका जो यहाँ पर नाज़िमुल उमूर है वो भी सफ़ीर के ओहदे पे चला जाएगा और काबुल में जो हमारा नाज़िमुल उमूर है वो भी सफ़ीर के ओहदे पे चला जाएगा। तो ये बाहमी ताल्लुक़ात में पेशरफ्त की अलामत है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरीन बाहमी ताल्लुक़ात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, नागुज़ीर। मौलाना साहब ये बताएं कि इस मुल्क में इदारे हैं और इसी तरह इस्लामी इस्लाम के साथ अगर कोई इस तरह का शादी होती है, जो भी बात होती है, इस्लामी नजरिया की कौन सा है और अक्सर आप लोग भी मुतालबा करते हैं कि इस्लामी नजरिया की कौन सा के पास क्या है और ये कबूली की शादी की बिल के बारे में भी कहा जा रहा है। तो वो इस्लामी नजरिया की कौन सा के पास जब देखते हैं और जब इस तरह की इदारे वो फैसले करते हैं तो फिर एहतजाज
देखिए काउंसिल तो एक इदारा है, उसने एक राय दे दी और उस राय में उन्होंने सराहत के साथ इस कानून को खिलाफ शरीयत करार दिया है। लेकिन ये सारा इक़दाम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अज़ खुद किया है या उनके अरकान की तहरीक पे किया है। असम्बली उस वक्त कानून साजी नहीं कर सकती जिस वक्त पार्लियामेंट की 22% अरकान किसी मसले को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ ले जाने का वोट ना करें। पहले ये तादाद ग़ालिबन 50% के करीब थी या 40% के दरमियान थी और अब वो नीचे 20-22% पे आ गई है। तो उसका एक प्रोसीजर है ज़रूर अपनी जगह पर, लेकिन हमने सिर्फ प्रोसीजर को देखना है या ये कि हम खुद भी मुसलमान हैं और हमारा एक इस्लामी अक़ीदा और नज़रिया हमें क्या कहता है और उस हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम वहाँ अंधे क्यों हो जाते हैं, हमारे आंखों पर पर्दे क्यों आ जाते हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने मगरबी दुनिया की पैरवी करनी है, उनको राज़ी रखना है। उनको राज़ी रखने में हमारे इक़्तिदार के इम्कानात पोशीदा हैं, तो आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होना है या नहीं होना चाहिए। तो ये हुक्मरान हज़रत अल्लाह का जुर्म कर रहे हैं, ये मुजरिम हैं, कौम की भी मुजरिम है, आइन की भी मुजरिम है, कुरान और सुन्नत की भी मुजरिम है। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मसला ज़ेर समाअत है। जजेस ने ये रिमार्क्स किए हैं कि ये जमात की नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में, उसको मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाए। इस मसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए कोर्ट जो फैसला करेगी उसका इंतज़ार करेंगे। जब तक मसला सब जुडिस है तो हम क्या कह सकते हैं। सवाल ये है कि पहले भी आपने सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपकी जो तवज्जो है वो मजबूर कराना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासतौर पर जो जम मसला है वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब है। आज भी जो है दरा दमखेल में घर के अंदर ब्लास्ट हुए जिसमें 2 अफराद जो है वो जाम बख्श हुए। ड्रोन अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं, एक खेल के मैदान के ऊपर भी गुज़श्ता हुआ। इसी तरह खैबर के वादी नीरा में भी जो है मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि लोगों को नकल मकानी की तरफ जो है वो कहा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये बात तो हज़रत आज की नहीं है, इस कर्ब से तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारा सूबा जो है वो गुज़र रहा है और आम आदमी इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तो पहले तो पाकिस्तान के उलमा का फतवा था कि यहाँ पर दीनी मकासद के लिए मुसल्लह जंग उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अब तो अफ़गानिस्तान के सिर्फ उलमा ने फतवा नहीं दिया बल्कि उस फतवे को अमारत इस्लामिया ने सरकारी तौर पर उसका ऐलान कर दिया है। तो इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम भी ख़ुद को उलमाए किराम की इस राय का पाबंद समझती है और मुसल्लह ग्रुपों को भी इस हवाले से उलमाए किराम की आरा और दोनों रियासतों के उलमा की आरा का एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब हैं कि 2013 में ये बिल जो आप बात कर रहे हैं ये सिंध असम्बली में पास किया गया है। रिसेंटली ये पंजाब असम्बली में भी पेश हुआ है और अभी नेशनल वुमेन कमीशन इस पर बात कर रही है और सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किया है। तो ये पीपल पार्टी का शुरू से ये इरादा है कि ये बिल हम पास करेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी की बात तो समझ में आती है कि वो अपना सेकुलर जो चेहरा है वो ज़्यादा वाज़ेह दिखाए ताकि वो बस ऐसी ज़बान के मुसलमान तो नज़र आएँ, लेकिन उसके अलावा लेकिन मुस्लिम लीग तो अपने आप को कहते हैं कि हम तो पाबंद 100 मसालात हैं और उसके बावजूद वो सिर्फ इक़्तिदार के बचाव के लिए उनके दबाव में आकर इस किस्म के क़वानीन नाफिज करती है। एक दफ़ा उन्होंने सिंध में कानून पास किया कि जी पता नहीं कितने सालों के कम कोई मुसलमान नहीं किया जा सकेगा जी। अब अजीब बात यह है कि आसिफ अली, इमदाद अली, हाकिम अली, कासिम अली, सारे सिंध जो है अली 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 से भरा हुआ है जी। और उनको ये पता नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजह वो किस उम्र में मुसलमान हुए थे
اور उनके इस्लाम को कबूल किया गया था। फिर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है, रुखसती होती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक मिसाल मौजूद है जिस पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है, और वो आपकी सबसे महबूबा जी। तो उस हवाले से हम अपनी तरफ से कैसे क़वानीन बना सकते हैं? लिहाजा रुखसती के वक्त के लिए ये तो तय है कि बुलूग होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ दुनिया के मौसमों के मुताबिक हर इलाके के लोगों के मुद्दत बुलूग के अपनी अपनी उम्र होती है, उसमें तफावत भी आता है, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ शरई तौर पर जायज़ है, आपने उसको जुर्म करार दे दिया, आपने उस पर सज़ा लगा दी, जुर्माने लगा दिए, 7 साल की कैद लगा दी, और जब ज़िना बिर रज़ा का सवाल आता है तो वहाँ पर आप प्रोसीजर को भी मुश्किल बनाते हैं, कवानीन में भी तब्दीली करते हैं। ये कैसा इस्लामी पाकिस्तान है कि जिसमें ज़िना के लिए तो रास्ते खोले जा रहे हों और सहूलत पैदा की जा रही हो और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हो? सवाल तो ये है। मौलाना साहब ये बताइए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ जो है शेख वकास साहब, उनका ये कहना है कि हमारे शो मौलाना साहब तहफ़्फ़ुज़ात डी खान के हवाले से सीएम साहब के वो दूर कर दिए हैं, फिर भी मौलाना साहब खुद इत्तेहाद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, क्या वजह है? ज़रा पहले इस सवाल को सवाल समझ लो पहले, फिर उसके बाद जवाब बाद में तलाश किया करो। सवाल ही ठीक नहीं है आपका। मिसाल के तौर पे कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते थे कि करप्शन की हुकूमत में हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने खुद नहीं कहा कि हाँ ये करप्शन हो रही है हमारी हुकूमत। अभी पहली बार जैसे कि आपने कहा है कि स्पीकर एक बैठा हुआ शख्स वो कह रहे हैं कि इतना करप्शन जो है इस सूबे में हुई है, तो आप क्या समझते हैं इस सूबे के और उनकी इदारे ये क्यों? इस सूबे में करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नहीं होगी। हमने पहले भी साबित करके दिखाया है कि करप्शन कैसे ख़त्म की जाती है, और अब भी साबित करके दिखाएंगे। ये ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी किरदार कुशियाँ की हैं, लेकिन क्या कोई आज तक एक FIR भी दर्ज हो सका है? ऐसी ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ कि जिस पर हमें अब आज भी जेलों में होना चाहिए था, लेकिन इतनी जुर्रत तक नहीं हो सकी कि कोई एक छोटा सा FIR आज तक दर्ज किया जा सके। तो किरदार कुशियों का मामला चलता रहता है, ये बात नहीं है असल बात। लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि MMA की हुकूमत में करप्शन 100% ख़त्म हो गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे चली गई थी, उसको हर सतह पर जुर्म तस्वर किया गया था, और आज मेज़ पर आमने सामने बैठकर पहले लेना देना तय होता है, उसके बाद फिर मसाइल का हल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर तो नज़रियात, दियानत, अमानत, इसकी जंग नहीं है, यहाँ पर जंग है अथॉरिटी की, कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जितना कमज़ोर इंसान होगा, जितना करप्ट इंसान होगा, जितना अखलाकी तौर पर गिया हुआ इंसान होगा, उसको लाकर आपके सरों पर बिठाएंगे ताकि उनकी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके उनको अपने अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो जंग अथॉरिटी की है, नज़रियात की नहीं है, अखलाकियात की नहीं है, और अमानत व दियानत की नहीं है। यहाँ तो अमानत व दियानत को पामाल किया जाता है, ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है कि कौन है जो सबसे ज़्यादा करप्ट, बद अखलाक, गंदे अखलाक का इंसान, गिरा हुआ इंसान, उनको मिले और आपके मुल्क का हुक्मरान बना दें ताकि अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी।